बाहर से मंगाओ, फिर लगा चलो घर इससे ज़्यादा चल ही नहीं पा रहा। These two people are trying to खरीदना ही watch. पड़ेगा, मैं समझ नहीं आई। ठीक है मम्मी, खरीदेंगे आप। हाँ ठीक है यार, बोल देना, क्या बोल यार। इसमें नाचेगी आज। She doesn't care. अब चल ही नहीं रहा। कैसे नहीं चल रहा है, इतनी आवाज़ निकल रही है। She's dancing. इनको डांस जो देखना था। God will help them now. मैंने 4 बार बोला पहले इस बच्चे को सुला देते हैं फिर आगे करना जो देख रहे हो। लेकिन ने मेरी बातें सुनी। अब ये सोने से पहले अपना इंस्टाग्राम चला रही हैं और ये लोग और हम लोग इस वक्त श्रेया के हम्बल अवार्ड में सब एक ही बिस्तर में ट्रैप्ड है। जाना सुबह शाम तू, बस सुबह शाम तू है जो सीने में मेरे, इस दिल का नाम तू। कब रात कब सुबह कुछ होश We are back. Oh, and I'm matching our room's wall. Yeah. To begin with, I would like to say that I love the aesthetics of my room. I am a person who gets bored with anything and everything very quickly. But I just realized that I'm somehow obsessed with this kind of blue, you know, this turquoise is my thing. There are so many, my bathrobe is turquoise. My room's entire wall is turquoise. No, not the room, but the walls are turquoise. It has a very nice blue feel to it. And there is this, then this, this is my bed's this thing. I look really bloated and fat right now, guys. I might have put on a weight, a kg or a weight of 2, but I not more than that. ये मेरा ऐसा इतना पास से मुँह लो तो ऐसे ही आता है. Plus मैं अभी सो के भी उठी हूँ. It is a Sunday. Weekdays are very busy. मेरे तो Sundays are also busy. Life in general is busy, but that's not the complaint. I love being busy क्योंकि मेरे को खाली बैठे एकदम समझ नहीं आता है कि मैं क्या करूँ. So yeah, that. यार guys, मैंने एक sit down video promise किया था, which where I will talk about the places I went to when we were in Gujarat, and if you guys want, and the things that you can go do in Gujarat, and you know, everything and anything around it, and the places that we stayed at. वो तो एक ऐसी information है कि अगर आपको चाहिए तो I can give. See, because it was a family vacation funded by my dear father. We were staying in some good, you know, very good, in lack of a better word, and at the risk of sounding snobbish and princessy, there were some good 5-star, 5-star, 4-star, 3-star resorts and hotels. So if you want that information, I can give that information. So how it happened, but if you are hearing, that's my mom talking to my mommy. I hope you are not hearing that. Editor साहब काट दीजिएगा अगर ये सब आ रहा हो तो. So what we did was that we started from this place called Bhajao. Any Tarak Mehta fans here? Yeah, the Jethalal wala Bhajao. So that is a place where my father is currently. So because he works, he's managing a factory there. He's heading of he's that kind of department. So the factories are usually in places that are close to the ports. Now Gandhidham is a place which is close to the Bhajao is a place that's close to the port. Now the closest townish, cityish thing to that is Gandhidham, right? And Ahmedabad is also very close and all of that. Not very close, but it's like a 5-6 hours drive. So we landed in Ahmedabad. We took a drive which was about 5.5-6 hours long drive to Bhajao. Then we left Bhajao at 6 in the morning and we reached Diu at around, if I remember correctly, somewhere around 1:30ish. Yeah, so it was that long of a drive. It's actually how much is that? Wait, yeah, it's a 7-8 hour drive. I think हम ऐसे ही पहुँचे थे 1:30-2 बजे करीब. And my father drives at a good speed. So
that is where Diu was by far the best experience. The resort was amazing. The facilities were amazing. There was so much to do in the resort, outside the resort. Now again, I'm saying when you go to Diu, there are things that can be done and there are around. पर उस टाइम पे कुछ चीज़ें बंद भी थी, कभी caves हैं जो बंद हैं. तो अगर आप Diu जा रहे हैं और आप बहुत घूमने के पर्पस से जा रहे हैं तो वैसा आपको नहीं मिलेगा. आप बीचेस जा सकते हो एट मैक्स. एक मार्केट है पास में छोटा सा, पर वो मार्केट भी इज़ अ वेरी स्ट्रीट शॉपिंग काइंड ऑफ अ मार्केट. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट, वो आप थोड़ा सा कर सकते हो, पर वो आप 2-3 दिन नहीं करोगे. तो इफ़ यू आर गोइंग टू ड्यू, माई सजेशन इज दैट अनलेस यू आर अ पर्सन हु इज़ विलिंग टू गो एंड सिट ऑन द बीच फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, go to a hotel or a resort. Resorts are a thing there and they're beautiful also. So go to a resort that has facilities where there are, you know, other recreational activities to be done. That will help. That's a great staycation place. You know, you can go with your family in the confines of that restaurant and that hotel. You will enjoy a lot. That is one thing. Then from there we went to where did we go from Diu we went to, तो आप लोग को ज़्यादा पता होगा यार. थोड़ा मेरे दिमाग में ना जंबल हो गया है कि किसके बाद हम कहाँ गए थे. तो Diu के बाद we went to Gir, we went to Diu, we went to Dwarika and we went to Somnath. So yeah, we went to Somnath after Diu. Now Somnath is another 2.5 hours drive from there. सोमनाथ में ऑल्सो जिस होटल में वी स्टेड हैड अदर थिंग्स, बट सोमनाथ में घूमना बहुत होता है. अगर इफ़ यू आर अ पर्सन हु स्पिरिचुअल और मंदिर देखने, सोमनाथ में बहुत कुछ है घूमने के लिए. तो वहाँ पे आपको, तो वहाँ पे आई वुड सजेस्ट आप ऐसा होटल में रहो जहाँ पे बहुत कुछ, अनलेस आप चाहते ही हो अंदर बैठना, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप बाहर जाके करोगे. तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप कोई जगह जा रहे हो जहाँ पे आप होटल्स के अंदर से ज़्यादा बाहर रहने वाले हो, तो ज़बरदस्ती होटल पे अनछंड पैसा खर्च करने का मुझे मतलब समझ नहीं आता. दैट्स हाउ आई लाइक टू पुट इट. तो फिर इन दैट केस, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी डिड. वी वर इन अ होटल. दैट वाज गुड. इट वाज अ गुड होटल विद गुड सर्विसेज, वेरी गुड फूड, very tasty food, and I'll keep listing the names of the hotels, क्योंकि मैं ऐसा बोलते मैं भूल रही हूँ, पर I'll give editors up the names एक करके and he will place it. So वो very good food. It's a hotel that I will recommend. Every place that I went to, I will recommend that place except for Gir. So yeah, I'll come to that. So that is where we went, and it was a very good place. आप आराम से रुक सकते हो वहाँ जाके. और सोमनाथ में बहुत सारे मंदिर हैं घूमने के लिए. एक स्पेसिफिक जगह है जहाँ पे आप सोमनाथ का तो मतलब मंदिर खुद का ही है. आप वहाँ जाओ और वहाँ से फिर आसपास आपको बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर दिखेंगे. लॉट ऑफ पीपल टेलिंग यू ऑल्सो यार गुजरात इज़ अ मस्ट गो, लाइक sort of a place, स्पेशली नॉर्थ इंडियन, मतलब हम यूपी दिल्ली वालों को तो बहुत ही मज़ा आएगा वहाँ जाके, क्योंकि यार लोग कम हैं. एंड आई थिंक दे आर ऑल्सो very रिस्पेक्टफुल इन टर्म्स ऑफ your timing, your space. The मंदिर are very well organized. आप आराम से, लाइन लंबी है फिर भी it's not a line that will make you feel परेशान नहीं करेगी वो लाइन आपको. आप चलते रहते हो. वेरी रिस्पेक्टफुल. लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग, बट जैसे एक बार लोग दर्शन कराए तो खुद ही बाहर आके बैठ जाते हैं. आप दोबारा भी लाइन में लगना चाहो तो आप रिस्पेक्टफुली सो लग सकते हो. So and they're very sweet. Gujarati, I love Gujaratis, and Gujarat is a heaven for vegetarians. Anywhere and everywhere you go, you will easy peasily find restaurants that are vegetarian. They will serve you bina onion garlic ka food. We do not eat onion garlic, so that we could easily get. मतलब कोई ऐसा problem ही नहीं था. No hustle at all whatsoever. Clean, tidy, not very dirty. Ahmedabad is beautiful, and so yeah, गुजरात बहुत अच्छा लगा मुझे. Then thirdly we went to Gir. Gir is a beautiful place, पर I think थोड़ा हमारा टाइमिंग गड़बड़ क्या हो गया था. वी न्यू कि हम जिस सीज़न में जा रहे हैं उस सीज़न में सफारी होती नहीं है, तो वो हम नहीं कर पाए थे. लेकिन यार ऑफ सीज़न गिर मत जाओ, या ये मेरा सजेशन होगा, क्योंकि कोई भी, मतलब हम एकदम अंदर गिर के रुके थे. एंड
पर ना कोई भी रिजॉर्ट फंक्शनल नहीं था, तो और प्लस बारिश हुए जा रही थी और वो जंगल है, तो कुछ चीज़ें आई हैव ऐसा है कि मैं सजेस्ट नहीं करूँगी। आप गिर मत जाओ, मतलब गिर ऐसा भी नहीं है कि आप वहाँ अंदर भी होटल के एंजॉय करोगे, नहीं करोगे, क्योंकि वो लोग, उनका ऑफ सीज़न होता है, वो सारा कुछ बंद रखते हैं। मतलब आप बोलोगे तो आपके लिए खोल देंगे, पर एक वो जो सब लोग कर रहे हैं और वो जो एक लाइवली, वैसा कुछ भी नहीं था माहौल। आई लाइक लुकिंग एट पीपल, आई लाइक लुकिंग एट थिंग्स एंड यार आप जंगल देखने जा रहे हो, जंगल भी आप देख नहीं सकते, तो मतलब मत ही जाओ ऑफ सीजन में, इज दिस थिंग। वी स्टेड देयर इन स्टर्लिंग रिजॉर्ट्स। स्टर्लिंग इज अ बिग नेम या, बट द रिजॉर्ट वॉज ब्यूटिफुल। व्हाट आई एम सेइंग अगेन इज, हम ऑफ सीजन में गए थे, पर फिर भी कुछ चीज़ें शुड हैव बीन मोर मेंटेन्ड देन दे वर, बट श्योर। देन द फोर्थ इज द्वारका वाली प्लेस आप लोगों ने क्लिप्स देखी होंगी। अनदर ब्यूटिफुल रिजॉर्ट एंड व्हाट ब्यूटिफुल रूम्स, और द्वारिकाधीश के दर्शन। द्वारिका यार वो जगह है जहाँ पे आप आइदर वे चूज़ कर सकते हो, बहुत बड़ी जगह नहीं है। आप अंदर भी रिजॉर्ट के रहना चूज़ कर सकते हो, आप वहाँ ना रुकना चाहो तो आप वहाँ ना रुकना चाहो तो इतने सारे मंदिर हैं, द्वारिकाधीश हैं, भेंट द्वारिका है, और द्वारिकाधीश का मंदिर बहुत खूबसूरत है। द्वारिकाधीश के मंदिर के नीचे आसपास देयर इज़ अ लॉट ऑफ मार्केट। इफ़ यू आर अ पर्सन हु लाइक्स टू शॉप, आपको दुनिया भर की बांधनी वहाँ मिलेगी, और इतना अच्छा काम, और यू बार्गेन, और सस्ते में आप अच्छा सामान लेके आओगे। इट्स ब्यूटिफुल देयर, लॉट ऑफ मार्केट। द्वारकाधीश के मंदिर के पास बहुत सारा मार्केट है, आप अच्छे से डट के शॉपिंग कर सकते हो, ऐसा मार्केट है। और द्वारकाधीश का मंदिर भी बहुत खूबसूरत है, वहाँ भी बहुत कामली आप सब कुछ कर पाओगे। हमने शयन आरती देखी थी, शयन आरती वहाँ होती है 9 साढ़े 9 बजे करीब, और आप वहाँ सुबह वाली आरती में भी जा सकते हो, और वहाँ शयन आरती में भी भीड़ थी। पर द्वारिकाधीश के मंदिर की सबसे अच्छी बात यह है कि उनकी मूर्ति ऐसी बनाई हुई है कि उनकी मूर्ति के बिल्कुल सामने यशोदा मैया की वो है मंदिर, और आप बिल्कुल पीछे भी खड़े हो ना, तब भी आपको द्वारिकाधीश दिखते रहेंगे। तो वो बहुत सुंदर मंदिर है, आप उनको पास से देखो, दूर से देखो। वेरी रिस्पेक्टफुल पीपल। मंदिर का प्रांगण बहुत खूबसूरत, बहुत पुराना बना हुआ है, किसी ने ज़्यादा उससे छेड़छाड़ नहीं करी है, तो आपको एकदम वो सारी फील दे देगा। आप भेंट द्वारिका ज़रूर जाइएगा, बहुत खूबसूरत। सुदर्शन ब्रिज है जो नया बना है, उसकी भी क्लिप्स आप लोगों ने ब्लॉग में देखे होंगे। यार इट्स अ ब्यूटीफुल, द्वारिका ऐसा मस्ट गो अगर आपका श्री कृष्ण में मन लगता है, अगर आप उनसे इफ़ यू फील अ कनेक्ट, इट्स अ प्लेस यू मस्ट गो। ये था एक छोटा सा, मैं अभी इस साल मैंने बहुत यार घुमा फिरी बहुत करी है, मैं फिर दोबारा जाने वाली, नथिंग स्टॉप्स अस सो दैट। पर उसके अलावा एक चीज़ और, जब हम ये अपना काशी विश्वनाथ गए थे, काशी विश्वनाथ के मंदिर के पास भी बहुत मार्केट है। ऑल ऑफ यू हु आर लुकिंग फॉर बनारसी साड़ीज, गो देयर। मतलब अगर आप लखनऊ के आसपास कहीं रह रहे हैं, तो मतलब आप जितने की साड़ी, अच्छी साड़ियाँ जो आप यहाँ से 10,000 की लेंगे, आप वो वाली साड़ी टिकट करा के वहाँ जाके लेके वापस आ जाओगे, आपको फिर भी उतना पैसा नहीं पड़ेगा जितना यहाँ बनारसी सिल्क जो वो बेचते हैं। ब्यूटिफुल कलर, यू विल हैव टू थोड़ा सा, यू विल हैव टू लुक कि आप किस दुकान में जा रहे हो। हर दुकान में उतना अच्छा कलेक्शन नहीं है। आई वुड सजेस्ट कि आप बाहर मार्केट वाली दुकान की जगह मंदिर के पास जो दुकानें, जो छोटी छोटी दुकानें हैं, जो गलियों में दुकानें हैं, गो देयर। दे हैव ब्यूटिफुल कलेक्शंस, दे हैव एंड दे वो आपको बहुत मन से चीज़ें दिखाते भी हैं, और एक वो माहौल और फीलिंग ही अलग होती है यार। डू दैट शॉपिंग पर्पसेस से। बाकी यार बहुत एक्साइटिंग रहा है, मुझे लगता है इस साल भगवान जी मुझसे बहुत खुश हैं। लॉट्स ऑफ गुड थिंग्स हैव हैपेंड, आई कैन नॉट बिगिन टू काउंट देम। सम जॉली
This year has been an emotional roller coaster. Some really shocking, sad things have also happened. But so I don't know. This year has been too much of a roller coaster. पर आई थिंक मैंने कहीं सुना था कि सिर्फ भगवान जानते हैं द ग्रेटर गुड. वो समझते हैं कि कब क्या क्यों कैसे ज़रूरी है. तो हाँ यार, let's not talking too much about that, but yeah, this was the summary of the trips that I've been. So trips तो have been a lot more. ऐसा घूमने वाला जो है, this is so far. हम अब जाएंगे here. I don't know if I've talked about this before or not, पर I am off to Pune this year for the Ganesh Chaturthi this thing. तो हम आपको वहाँ से live दिखाएंगे जो महाराष्ट्र में गणपति बाप्पा के आगमन का माहौल होता है. दिस वॉज अ थिंग इन माई टू डू लिस्ट एंड आई एम डूइंग दैट. सो वेरी वेरी हैप्पी, वेरी वेरी एक्साइटेड. आरज़ू है तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है.